સ્વાસ્થ્યની સાથે સૌંદર્ય પણ બધાને જોઈએ. એના માટે આજે બધા લેપ લગાવી રહ્યા છે. આ છોકરીઓના ફેસ ઉપર તમે જોઈ શકો છો. આમાં પપાયા અને પપાયામાં મધ મેળવી દીધું, પપાયા અને હની, પછી મુલતાની મીઠી, અને આમાં મુલતાની મીઠીમાં દહીં છાશ કે આ ગુલાબનું ફૂલ આ મેળવી દીધું. અને આ તો એન્ટી એજિંગ છે. આમાં તો પકાયેલા કેળા છે અને પપૈયા છે, ખીરા છે, આમાં પછી કલોંજી છે, આમાં બાદામ અખરોટ છે, મુલતાની મીઠી છે, ગુલાબની પંખડીઓ છે, એમાં સંતરા છે, આ બધું એલોવેરા છે, હલ્દી છે. આ એન્ટી એજિંગ લેપ અમે બનાવીએ છીએ. તો આ એન્ટી એજિંગ લેપ છોકરીઓને અમે અહીંયા અપ્લાય કરી રહ્યા છીએ. તો આ એન્ટી એજિંગ લેપ, અને આમાં છે સુહાગા ટંકણ, નારિયેળનું તેલ અને લીમડાના પાંદડા એ લગાવીને સિર ઉપર એનાથી 10 ગ્રામ સુહાગાની ખીલ ટંકણ ભસ્મ, આમાં લગભગ 20 ગ્રામ નારિયેળનું તેલ અને આમાં લીમડાના પાંદડા. કોઈને બહુ જ વધારે હોય તો ખાટી સાસ એમાં મેળવી દેવાની. 10 ડ્રોપ એક જ બારમાં સારું થઈ જાય. બહુ વધારે હોય તો 3 બાર જરૂરત પડે. તો આ બધા પ્રયોગો. પછી જેને વાળ બહુ ખરતા હોય તો આ બધું અપ્લાય કરી રહ્યા છે કેસ માટે. અને પછી સિર ધોવાનું હોય ને તો એના માટે જો આ જટામાસી, આ અરીઠા અને આ શીકાકાઈ, આ અરીઠા શીકાકાઈ જટામાસી આ બધું નાખીને અને આમાં રાત્રે પાણીમાં મૂકી દીધું. આ શીકાકાઈ આ રાત્રે પાણીમાં મૂકી દીધું, આ રીઠા પાણીમાં મૂકી દીધું, અને આ જટામાસી એ આ પાણીથી જ આપણે સિર ધોવાનું. અમે કેશકાંતિ તેલ, કેશકાંતિ શેમ્પૂ આ બધું બનાવીએ છીએ, પણ એમાં જે વધારે લાભ જેનાથી થાય એની મહિમા અમે દરરોજ આપને કહીએ છીએ. તો આ જુદા જુદા જે પ્રયોગો છે અમે વર્ષોથી જે વાપરીએ છીએ એ તમને જુઓ. બાળ માટે, જેને બાળ બહુ જ ખરતા હોય એના માટે તમે આ ઘરે કરી લેજો. જેમાં બધા ફેસ પેક તમે બતાવ્યા ને, અને કશું નહીં મળે તો મુલતાની મીઠીનો ફેસ પેક બનાવી લેજો. આ કેશકાંતિ પહેલાં તો અમે આ ઓઇલ આપતા હતા. આ કેશકાંતિ આ પણ સારું છે. ये तो पुराना केश कांति है हमारा. इस पुराने केश कांति में लाभ है, इसमें भी बहुत औषधियाँ 26 जड़ी बूटियाँ हैं. लेकिन ये नवू केश कांति ये तो बहुत अद्भुत है. આમાં ભીંગડા છે, કઢી પત્તા છે, પ્યાજ છે, ડુંગળી છે, ગુલાબના પાંદડા છે, ભાંગના પાંદડા છે, અને આમાં આ બધું કરીને તેલમાં ઉકાળીને અને પછી આમાં લગાવવામાં ઘણા બધા સરસ રીતે નહીં લગાતા હોય. તો આમાં આમ લગાવે ને તો આ આમ લાગે. આમાંથી ધીમે ધીમે તેલ પડે ઓટોમેટિકલી, અને આ આમ લગાવીએ તો આખા સિરના બાળના જડમાં આ પહોંચી જાય આવી રીતે. હા, અને આ માથા ઉપર, અને જે ભાઈઓ મારી જેમ દાઢી રાખતા હોય ને દાઢી આમ લગાવી તો હા એકદમ જડ સુધી પહોંચી જાય. આ છે. તો આ અદ્ભુત પ્રયોગ છે. એનો લાભ પણ પછી એને મૂકવાનું હોય ત્યારે એને કાઢીને એનો અમે બનાવેલો છે અને આમાં મૂકી દે. તો આ બહુ જ અદ્ભુત યોગ છે, એનો પ્રયોગ છે. તો જુઓ, આ બધું કરવાથી
આ તો નાનકડા ઉપાયો બતાવ્યા. આમ તો ઘણા બધા ઉપાયો છે મારી પાસે. આમાં ઉપટન પણ છે, આમાં એક કાજલ પણ છે, હર્બલ કાજલ, હર્બલ સુહાગ ટીકા પણ છે, અને બધા કેશકાંતિ, દંતકાંતિ, બ્યુટી ક્રીમ, એન્ટી રિંકલ ક્રીમ, બધા બાથિંગ સોપ, આ બધું છે. એની સાથે સાથે મેન છે યોગાભ્યાસ. યોગાભ્યાસમાં જે આપણે શીર્ષાસન કરીએ, શીર્ષાસન કરવું, શીર્ષાસન અને સર્વાંગાસન. શીર્ષાસન અને સર્વાંગાસન આ બે એન્ટી એજિંગ છે. જે દરરોજ શીર્ષાસન 5 થી 10 મિનિટ કરે, જે સર્વાંગાસન 5 થી 10 મિનિટ કરે, અને 10-10 મિનિટ કપાલભાતિ, બે આસન એન્ટી એજિંગ છે, સૌંદર્ય માટે છે. અને બે પ્રાણાયામ, કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ, આ સતત કરી લે. सौंदर्य माटे अद्भुत है. सुंदरता के लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम 2 प्राणायाम, शीर्षासन, सर्वांगासन 2 आसन, और ये लेप, एंटी एजिंग लेप, जिसमें पका हुआ केला, पका हुआ पपीता, खीरा, बादाम, अखरोट, चिरौंजी, गुलाब फूल, हनी और मुल्तानी मिट्टी. गाय का दूध मिला सकते हैं उसमें, या दही छाछ मिला सकते हैं, चेहरे पर लगा दें. इतना ज़बरदस्त, ये बेस्ट है एंटी एजिंग. फिर पका हुआ पपीता, उसके अंदर हनी मिला दिया, मुल्तानी मिट्टी, उसके अंदर गुलाब फूल और हनी मिला दिया, और ये एंटी एजिंग है. बालों के झड़ने के लिए बहुत तरह के उपाय करते हैं कि ना झड़े. रीठा, सीकाकाई और ये जटामासी, ये भृंगराज भी बहुत ज़बरदस्त है. इसका भी रस, इसको तो खा भी लिया जाए, लगा भी लिया जाए. अद्भुत चीज़ें हैं. और ये हर्बल काजल, हर्बल सुहाग टीका नहीं तो, और डैंड्रफ के लिए तो सुहागा, नारियल और नीम के पत्ते, ये इसके लिए रामबाण है. तो ऐसी बस 1 चम्मच सुहागा की खील, 2 चम्मच नारियल का तेल, 2-3 चम्मच नीम के पत्तों का रस या पेस्ट, इसको बाल में लगा दो और आधा घंटे बाद धो दो, कैसा ही हो. डैंड्रफ 3 दिन में ठीक. कपालभाति, अनुलोम विलोम करने से, शीर्षासन, सर्वांगासन से भी डैंड्रफ दूर होता है. और ये बालों के लिए तेज बड़ा जबरदस्त, बालों के लिए ये, आँखों के लिए अनुलोम विलोम, शीर्षासन. और जिनकी एड़ी फटती है, 100 ग्राम सरसों का तेल, 50 ग्राम देसी मूंग और 5 ग्राम उसमें कपूर मिला दो, और उसको, नहीं तो हम क्रैक क्रीम बनाते हैं, क्रैक क्रीम, ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, ये सब बनाते हैं. लेकिन घरेलू उपचार, होम रेमेडी को हम सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं. योग, आयुर्वेद અને યજ્ઞ तो ज़बरदस्त है. ये भाई को मिट्टी लेप लगा रहे हैं. ये मिट्टी लेप सौंदर्य के लिए अद्भुत है. मिट्टी के अंदर एलोवेरा, हल्दी, नीम के पत्ते, एलोवेरा, हल्दी, नीम के पत्ते, और किसी को बहुत ज़्यादा स्किन में, शरीर में गर्मी हो तो मेहंदी के पत्ते भी लगा देते हैं. ये कायाकल्प लेप हम इसको बोलते हैं. और इसमें किसी को पसीने न आए तो यज्ञ जो थी रही उसे, किसी को पसीने न आए तो यज्ञ की भस्म भी इसके अंदर मिला देते हैं. केश कांति, दंत कांति, एलोवेरा जेल, कुछ नहीं तो एलोवेरा जेल लगा लें, मैं तो कांति लेप लगा लें. ये अद्भुत उपाय हैं सौंदर्य के लिए. डाइजेशन वीक हो तो फिर मंडूकासन कर लें. मंडूकासन
वक्रासन, मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, उत्तान पादासन, नौकासन, डाइजेशन एकदम अच्छा हो जाएगा। યોગિક જોગિંગ, સૂર્ય નમસ્કાર, દંડ બેઠક. પરસેવો ખૂબ આવવું જોઈએ. જેને પરસેવો આવે એને સૌંદર્ય મળે. મંડૂકાસન, વક્રાસન એકદમ સરળ છે. યોગ મુદ્રાસનમાં પદ્માસન ઘણા બધાથી નહીં થાય, એ નહીં થાય તો વાંધો નહીં. મંડૂકાસન, વક્રાસન, ઉત્તાન પાદાસન, લોકાસન કરી લેજો. પેટ સારું રહે તો આખા શરીરનું સૌંદર્ય સારું રહે. તો આ માટીનું લે આખા શરીરને સૌંદર્ય માટે, જેને પરસેવા નહીં આવતા હોય એના માટે બધું બતાવ્યું. જેને પિમ્પલ ઇન્કલ્સ બહુ હોય એલોવેરા જેલ લગાવી લેજો ડેલી, અને વીકમાં 2 વાર શાંતિ લેપ લગાવી દેજો. અદ્ભુત લાભ થાય. સર્વાંગાસન, હલાસન, જેને થાઇરોઇડ એના માટે, થાઇરોઇડના લીધે પણ ઘણા બધાને બ્યુટી પ્રોબ્લેમ્સ થાય, સ્કિન પ્રોબ્લેમ્સ થાય. આ પવન મુક્તાસન, ઉત્તાન પાદાસન, લોકાસન એ તો રામબાણ છે, બ્રહ્માસ્ત્ર છે પેટમાં. પવન મુક્તાસન, ઉત્તાન પાદાસન, એક એક આસન 1-1 મિનિટ કરી લે. જેનાથી થાય તો પાદામુક્ત નાસન, પ્રશાસન પણ સારું. અને વજન ઉતારવા માટે, જેને વજન વધારે હોય ને પછી એને શારીરિક સૌંદર્ય બગડી જાય, તો અર્ધલાસન, પાદ વૃત્તાસન, દ્વિચક્રિકાસન અને સ્થિત કોણાસન અને ચક્કી આસન, એ 5 આસનો કરી લે. ક્લોકવાઇઝ, એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. અને જેને વજન ઉતારવું છે ને એને તો હા 25, 50, 100 વાર અને પરસેવો બાવ સવારે ઉઠીને દોડ લગાવો, સૂર્ય નમસ્કાર કરો, દંડ બેઠક લગાવો. અને જેને વજન વધારે છે આ સ્થિત કોણાસન, ચક્કી આસન, એક અભ્યાસ 50, 50, 100 વાર કરી દે. સૌથી વધારે કપાલભાતિ અનુલોમ વિલોમ ઉપર અમે બળ એટલા માટે આપીએ છીએ, એનાથી બધા રોગો માટે. તો સૂક્ષ્મ વ્યાયામ કપાલભાતિ અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામ એ કરીને તમે સ્વાસ્થ્ય તો પામશો, સુંદરતા પણ તમને મળશે. યોગથી સ્વાસ્થ્ય મળે, સુંદરતા મળે, શક્તિ મળે, ભક્તિ મળે, જ્ઞાન મળે, વ્યાધિ મિટે, સમાધિ મળે, સમાધાન મળે છે. જે ભાઈઓ બહેનો એનાથી લાભ પામીને, આ તો નવા, આજે તો છોકરાઓ છે નવા बेटियों, तुमने योग कब से करना शुरू किया? बैठ जाओ बैठो, तुम्हारा तो सब लेप लगा दिया पूरा आज बैठ जाओ पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया इनके ऊपर। तो योग करके कोई बात नहीं, निद्रा आ गई थी योग करके तुमने क्या क्या फायदा पाया जरा तुम्हारा पूछते हैं। पहले तो इसी को दो जो योग निद्रा में चली गई थी। क्या नाम है बेटा? त्रिशा। हाँ कोई नहीं, चालू है भाई। त्रिशा। निशा, कब से योग कर रही है? मैं ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे। यहाँ कब से आई हो?
यहाँ 5 दिन से 5 दिन। तो 5 दिन में वज़न कितना कम किया? 3 किलो। 3 किलो है, अच्छी बात है। 5 दिन में 3 किलो की वज़न कम करना, और धीरे धीरे अब पूरा ही कम हो जाएगा, जितना चाहती है उतना कम हो जाएगा। और ये जो पाद वृत्तासन है, गोल घुमाने वाला, 100 बार करना, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, इसको। तो वज़न के अलावा और क्या चाहिए आपको? मुझे साइनस और माइग्रेन का प्रॉब्लम है। तो साइनस के लिए तो अनुलोम विलोम, और माइग्रेन भी इससे दूर होता है। जननेति सूत्र नीति यहाँ कराते हैं, नारियल के तेल नाक में डालना, और वो नाभि में भी लगा लेना। बादाम रोगन नाक में डालो, नारियल का तेल नाभि में लगाओ, सिर दर्द, माइग्रेन पेन भी दूर हो जाता है। और इसको देने इस गुड़िया को। तुम कब से कर रही हो योग? 1-2 साल से कर रही हूँ। 1-2 साल। क्या लाभ पाया तुमने? काफ़ी आराम है। पास में रख के बोलो। हाँ, नहीं चालू है, माइक तो चालू है। हाँ, क्या लाभ पाया तुमने योग से? काफ़ी आराम है। आराम है काफ़ी। तो बेली फैट कम है। कोई कोई तो स्वस्थ रहने के लिए ही करते हैं, और कोई कोई योग करके बड़ी बड़ी बीमारियों से, पीसीओडी से लेकर के, मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम से लेकर के, वाइट डिस्चार्ज से लेकर के, और तमाम बाल, आँख, कान की समस्या, जो करेगा आगे को देना इनको। तुम कब से कर रही हो बेटा? मैं यहाँ 14 तारीख को आई, तब से ही मैंने योग करना शुरू किया है। उससे पहले मुझे भरोसा नहीं था योग पे, मैं नहीं मानती थी इन सब चीज़ों में, पर यहाँ आके मुझे बहुत ही आस्था बनी है और श्रद्धा भी बनी। क्या मुझे feeling कर रहे हो? टाइप 1 डायबिटीज़ है। मैं आई तब 42 यूनिट्स इंसुलिन लेती थी पूरे दिन का, और कल के दिन में मैंने सिर्फ 10 यूनिट लिया है। 10 से आगे 42 से। ओम स्वामी जी। अब इसको कंटिन्यू करना बेटा, है ना? जी। अगली बेटी को देना। ओम, मेरा नाम मृदुला द्विवेदी है, मैं मुंबई से हूँ। मैं 10 साल की उम्र से योग करती हूँ। तुम्हारी माँ ने सिखाया है? जी जी जी, मेरी मम्मी ने सिखाया। उनको पैरालिसिस हो गया था, और योग प्राणायाम से उनका ठीक हुआ, तो उन्होंने हमें उसी उम्र से योग प्राणायाम करने की ट्रेनिंग दी है, टीवी पे देख के, आपके शोज़ देख देख के। तो मैं भी तभी से करती हूँ। भगवान की दया से योग प्राणायाम की वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं है एज सच। एंड हाँ, बाल भी, चेहरा भी ठीक ही रहते हैं, बॉडी भी ठीक ही है। सो पूरा बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए, ब्यूटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए, एक इनर स्ट्रेंथ के लिए, इनर पीस के लिए, इटर्नल पीस के लिए। हाँ, तो डेली करते हैं हमारी बेटी। चलो पीछे को देना। कपालभाति, अनुलोम ओम विलोम स्वामी करो। जी, मेरा नाम आरती है, और मेरी बॉडी में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। मैं पिछले 2 महीने से ही योग कर रही हूँ। अच्छा, 2 महीने से कर रही हाँ हो। जी, और मेरा फेस भी काफ़ी क्लियर हो गया है। मुझे पिंपल्स बहुत आते हैं, तो अब पिंपल्स आते काफ़ी थे, कम आप हो उपाय गए। बताए इनमें से ही क्या क्या किया तुमने? मैं प्राणायाम करती हूँ, सूर्य नमस्कार करती हूँ। एलोवेरा जेल नहीं लगाया? वो केसर वाला लगाती हूँ स्वामी जी। केसर वाला ना, ये वाला? हाँ जी, हाँ, हाँ जी। केसर चंदन वाला, ये चेहरे के लिए तो जबरदस्त है। हाँ? चलो अगली बेटी को देना। ओम स्वामी जी, मेरा नाम रचिता है। मैं यहाँ पर 4 दिन से आई हूँ, और 4 दिन से योग कर रही हूँ। 4 दिन में मैंने 3 किलो वज़न कम किया है, और मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम है। पीसीओडी? जी। ये 1-1 घंटा कपालभाति, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम कर, पूरा ठीक हो जाता है 1 से 2 महीने के अंदर ही। जी स्वामी जी। पीछे वाली बिटिया को देना। प्रणाम पीसीओडी स्वामी बहुत जी। बड़ी समस्या है लेडीज की, और भी मेंस्ट्रुएशन के प्रॉब्लम्स सब दूर होते हैं। जी बेटा। प्रणाम स्वामी जी। मुझे स्किन के एलर्जीज़ है, पूरे बॉडी पे रैसेस रहते हैं। तो मैं कल से आई हूँ, मेरा ट्रीटमेंट अभी शुरू नहीं हुआ है, आज से होगा। अभी जो भी पीसीओडी के मेरे प्रॉब्लम थे, वो सारे के सारे मेरे योग से ही चले गए हैं। बाकी जो स्किन के, वो इसी के लिए ही आई है। स्किन के लिए तो बेस्ट है कायाकल्प खाली पेट, नीम गिलोय खाने के बाद में, नीम गिलोय कायाकल्प, और नमक मीठा कुछ दिन के लिए कम कर दे या बंद कर दे, एकदम से पूरा दाद, खाज, खुजली और स्किन का प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है ना। बस कुछ दिन लगातार करना। तो आवी रीते
આ યોગ કરવાથી ઘણા બધા આમ રોગો તો મટાડી દીધા છે અને નાનપણથી યોગ કરે ના તો એનાથી વધારે કશું નહીં. આ ખાલી દીકરીઓ માટે નહીં, દીકરાઓ માટે પણ. हाँ खाली बेटियों के रहने बच्चों, तुमको भी कोई बड़ी बीमारी थी किसी को? अच्छा, बड़ी बड़ी बीमारी लेके आए थे. इधर देना भाई माइक. योग करना है, कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा आधा घंटा. जी बेटा. हाँ स्वामी जी, मैं आपके वीडियोस देखता था यूट्यूब पे. मैं 2-3 साल से योगा खुद कर रहा हूँ घर पे. मैं योगराम आए हुए 2-3 दिन हुए. मुझे हाई बीपी का प्रॉब्लम है, हाई बीपी 170-100. अरे राम. आपके मैंने वीडियोस देखे थे. आपने बोले थे जो एमएनसी होती है, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मुंबई में, तो जो नाइट शिफ्ट की उन्होंने, सैलरी तो वो लोग देते अच्छी खासी, बट काम इतना करते पूरा खून चूस लिया उन्होंने. इतना मतलब नाइट शिफ्ट पूरा स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया. जो मुझे 20 साल में नहीं हुआ वो 2 साल में हो गया. तो सैलरी तो अच्छी थी, लेकिन एमएनसीज के बारे में मैं पिछले 20 सालों से बोलता हूँ. मैं IT इंजीनियर हूँ. युवाओं का यौवन हरण कर लेती है. मैं IT इंजीनियर हूँ. IT इंजीनियर है. बीपी हो गया था, अब क्या हाल है बीपी यहाँ? अभी तो कम है, 130-80 हो गया अभी. हाँ, अब पूरा ठीक हो जाएगा बेटा. वो प्राणायाम गोली मत छोड़ना ना. एलोपैथी का गोली चालू किया था, वो अभी बंद किया 2 दिन बहुत से. अच्छा. मुक्तावटी चालू. ले लेना बेटा, मुक्तावटी बीपी की. सुबह 2 शाम को 2. क्या नाम है? अक्षय. अक्षय का बीपी ठीक कर लिया, जो कि इस उम्र में, कितनी उम्र है? मेरी 24. 24 की उम्र में बीपी आ गया. तो शीतली शीतकारी भी क्या कर बेटा, ये दांत के पीछे जीभ लग, शीतली शीतकारी, अनुलोम विलोम, बाकी तो सारे प्रोसीजर्स कर रहे हैं, पूरा ठीक हो जाएगा. और किसी ने क्या बीमारी ठीक की है? स्वामी जी ओम, मुझे 12 साल से इपिलेप्सी की प्रॉब्लम थी. क्या? इपिलेप्सी की प्रॉब्लम 12 साल से. एपिलेप्सी? ओ. मैंने 2 साल से योगा शुरू कर दिया रहा. हाँ. तो पहले सप्ताह में आती थी, वीकली आती थी. अब साल में एक बार ही आती है, वो भी खत्म कर देंगे. अच्छा, ये बड़ी बात है. एपिलेप्सी नहीं तो पूरी जिंदगी इससे दूभर हो जाती है, लेकिन इस लड़के ने उसको भी विजय पा ली. मैं वो भी ठीक कर दूंगा. मैं मेधावटी लेते रहना बेटे ना, और गाय का घी 2 चम्मच जरूर खाना रोज, और गाय का घी नाक में डालना. उससे ब्रेन के जो स्नैप्स बोलते हैं उनको, माइलिन सीट बोलते हैं, बोला है ना कई बार मैंने. हाँ. ये स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, है ना. अगले बच्चों को देना. प्रणाम. तुमने क्या ठीक किया भाई? प्रणाम स्वामी जी. मेरे को फैटी लीवर ग्रेड 2 था, अरे राम. है एक्चुअली, अब ग्रेड 1 के आसपास आ गया है, उधर घट रहा है. पूरा 2 सप्ताह में ठीक हो जाएगा. सर्वकल पानी पीना दिन भर, वो पी रहे हो ना. हाँ. लिवोग्रिट, लिवामृत. छोटे बच्चों को फैटी लिवर हो गया आजकल. बीपी भी ठीक कर लिया मैंने, 2 बीपी साल ठीक पहले ही ठीक कर लिया था. कितना आ गया बीपी? 120-80. चलो 120. और एलोपैथी की दवा बंद कर दिए? क्या नाम है? तोशबीर. कहाँ से हो? बैंगलोर. बेंगलोर. तुम भी IT इंजीनियर हो क्या? हाँ. ये IT इंजीनियर बन के पैसा कमाने के चक्कर में फैटी लीवर, बीपी, शुगर, माने बुढ़ापे की बीमारियां जवानी में ले लेते. लेकिन बेटा अब योग मत छोड़ना. जी स्वामी जी. हाँ, धन के चक्कर में तन खराब नहीं होना चाहिए. तो हमने क्या ठीक किया? 2016 में पूरा एकदम जॉन्डिस हो गया था बाहर में रह के खाना पीना के चलते. तो फिर पूरा तब से मेरा पेट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया, फैटी लीवर हो गया. तब से पूरा मेरा यौवन पूरा बर्बाद हो गया. मतलब कुछ भी मैं कर नहीं पा रहा था. वो पूरा शरीर एकदम जाम हो रखा था. वो पैर हाथों में दर्द और धातु रोग भी हो गई. फिर तब से तो मैं योगा करने लगा, जब से मतलब इंटरनेट आ गई है. तब तो कम से कम शरीर ख़राब होने नहीं दे रहा था, लेकिन ब्रेक लग गया, लेकिन रिवर्स गियर पे नहीं आ रहा है. थक गया मैं, एकदम परेशान हो गया ज़िंदगी से एकदम. अब रिवर्स गियर लग गया तेरा. अब यहाँ जो सीखा है उसको 1 महीने तक लगातार करना, 2 महीने तक. 2 महीने में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, है ना. ऐसे निराश मत हो, है ना. मैंने CMC बेलोर है ना, ऐसे घबराते नहीं. से कहीं भी दिखा लिया हो. थक गया मैं. यहाँ सारे संसार से थके हुए ही मेरे पास आते हैं, है ना. परेशान मत. तूने क्या ठीक किया बेटा? नमस्कार स्वामी जी. मैंने पहले तो 6 महीना पहले योग स्टार्ट किया. उससे पहले मैं जिम करता था, तो पहले तो फिट था, अभी और ज़्यादा फिट हो गया हूँ. अभी आंखें ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी. हाँ, आँखों को लिए त्राटक, जलनेति, सूत्रनेति, शीर्षासन, अनुलोम विलोम.
और आयुर्वेदिक औषधि देंगे, बस पूरा ले लेना। जी स्वामी जी। तूने तेरे को क्या था? प्रणाम स्वामी जी, मैं नीमच मध्य प्रदेश से आया हूँ। मैं पिछले 5-6 सालों से योग कर रहा हूँ और पहले मुझे गले में काफ़ी टॉन्सिल्स और सर्दी ज़ुकाम होता रहता था घड़ी घड़ी, और आंखें भी मेरी काफ़ी वीक थी। बट योगा करने की वजह से मेरा आंखें भी अब प्रॉपर हो गई हैं और सर्दी ज़ुकाम भी बार बार नहीं होता है। क्या नाम बेटा? आयुष। आयुष, आशीर्वाद इसको देना। प्रणाम स्वामी जी। और टाइप 1 का शुगर है हमें। अच्छा, टाइप 1 डायबिटीज है। जनवरी 1 को मालूम चला, तो अप्रैल से हमने योगा स्टार्ट किया। तो मेरा शुगर 350 था, घर से आए तो नाप के यहाँ पे 256 हुआ है। और अब इंसुलिन कितना चल रहा है? इंसुलिन 6-7 महीने हो गया छोड़े। नहीं, यहाँ नहीं लगाता बंद जी। 6-7 महीने हो गया छोड़े। छोड़ दिया जी। ये अच्छी बात है। तो छोड़ने के बाद अब कितना निकल रहा है यहाँ? क्या चीज़? शुगर 256 था यहाँ पे। अब और ये भी 150 तक आ जाएगा, चिंता मत कर, नॉन डायबिटिक हो जाएगा। मधुनाश्री मधुगिरी ले रहा है ना? जी ले रहा हूँ। हाँ, वो जरूरी है। ये तो ब्यूटी पार्लर चलाता है गोवा में, अब ये नेचुरल ब्यूटी पार्लर बता दिया आज पूरा। नमस्कार स्वामी जी। तो पूरा पतंजलि रखा कर। नरेंद्र गोवा से आया हूँ महाराज, और लास्ट कुछ 6-7 महीने पहले मुझे कोरोना हुआ था। कोरोना होने के बाद में मेरे थोड़े हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी। सो डॉक्टरों ने मुझे एलोपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। दिन में 3-3 टेबलेटें, 4-4 टेबलेटें, प्लस मुझे साथ में माइग्रेन की प्रॉब्लम होने लगी थी। अब यहाँ पे आए हुए 3 दिन हुए, 3 दिन में मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई बाबूजी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा जो चेस्ट में पेन है, अभी 3 ही दिन हुए, अभी तो मेरे पूरा 1 हफ्ता बाकी है, और बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूटी पार्लर चलाता है ना? जी जी। तब ये नेचुरल ब्यूटी चीजें सीख। बिल्कुल 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 नेचुरल में जो तो આવી રીતે योग में जो योग કરશે, આયુર્વેદનો ઉપયોગ કરશે, એ સદાય સ્વસ્થ અને સુંદર રહેશે।